कंप्यूटर साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ यूजिबिलिटी इन HCI। वो सारे की कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं। तो इसको हम करेंगे कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूजिबिलिटी आर इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, लर्नेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी, error tolerance and satisfaction. These factors ensure that users can complete tasks quickly and easily with minimal errors. Good usability leads to a better overall experience. It also reduces frustration, improves productivity and encourages continued system use. ये इसका कंप्लीट एक आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द 4 की एलिमेंट्स ऑफ HCI। अब जो 4 की एलिमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वो हैं क्या। वो है यूजर, टास्क, टूल्स या टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब जो यूजर इसमें की एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है द पर्सन यूजिंग द सिस्टम, जो उस सिस्टम को यूज कर रहा है। देन सेकंड जो की एलिमेंट है वो है टास्क, ये होता है कि व्हाट दे वांट टू अकम्प्लिश। थर्ड है टूल्स या टेक्नोलॉजी जो भी वो यूज हो रही हैं उसमें। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज। These elements must work together for smooth interactions. Misalignment among them often results in usability problems. ये सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। थर्ड है इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेटेड एंड अनमॉडरेटेड यूजिबिलिटी टेस्टिंग। तो आंसर इसका होगा कि इन moderated testing a facilitator guides and observes the user, providing deeper insights into usability challenges. In unmoderated testing, users complete tasks remotely without supervision, making it faster and cheaper. Moderated testing is best for detailed feedback. अब ये इसके जो बेस्ट है ये किन चीज़ों के लिए वो बताएंगे कि फीडबैक है, while unmoderated testing is best for larger groups. Both approaches are useful depending on time, cost and project goals. बोथ हम लोगों ने मॉडरेटेड और अनमॉडरेटेड यूजिबिलिटी टेस्टिंग को डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एरर हैंडलिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HCI। तो एरर हैंडलिंग इसमें रेफर करता है कि सिस्टम हाउ सिस्टम प्रिवेंट्स, डिटेक्ट्स एंड हेल्प्स रिकवर फ्रॉम user errors. It includes clear and informative error messages, undo or redo options, and step-by-step guidance. Good error handling reduces frustration and prevents task failure. It also improves user trust in the system. ये इसका complete answer है। Next है question 5 what is meant by user centered design UCD in HCI। अब इसका हम लोग एक कंप्लीट आंसर देंगे कि यूजर सेंटर्ड डिजाइन इज एन अप्रोच दैट प्लेसेस यूजर नीड, प्रेफरेंसेस एंड लिमिटेशंस एट द सेंटर ऑफ द डिजाइन प्रोसेस। अब ये उसकी ये है कि वो किस बारे में इंश्योर करता है। इट इंश्योर्स द फाइनल प्रोडक्ट इज एक्सेसिबल, यूजेबल एंड इफेक्टिव। ये सारों चीज़ों को ये इंश्योर करता है फॉर इट्स इंटेंडेड ऑडियंस। UCD involves iterative testing while real users at every stage. This approach helps create systems that truly match user expectations. Sixth है give 3 benefits and 2 drawbacks using password managers। पहले इसके benefits को डिस्कस करेंगे और then drawbacks। Benefits हैं इसके they provide stronger security by generating complex passwords, store multiple passwords for convenience, and reduce the risk of weak or reused passwords. जबकि इसके drawbacks हैं they can act as a single point of failure if hacked, and users may become overly dependent on the software. However, proper encryption and cautious use can minimize the risks. Seventh है how does user feedback contribute to effective system design। Answer has the user feedback highlights usability issues, user preferences, and gaps in the system performance. By listening to users, designers can make improvement that increase satisfaction and efficiency relevant. Feedback ensures that the system remains user-friendly and relevant. It also makes user feel valued, creating stronger trust in the product. नेक्स्ट है 8 प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ हाउ यूजर फीडबैक लेड टू अ डिजाइन चेंज। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस सीखी है कि जो यूजर का फीडबैक है वो डिजाइनर्स को किस तरह से हेल्प करता है अपने डिजाइन को इम्प्रूव करने में और उसको रेलेवेंट बनाने में। यहाँ पर हमने इसकी एक एग्जांपल देना है कि किस तरह से किसी फीडबैक ने किसी डिजाइन को इम्प्रूव किया। तो अब हम इसकी एक
एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग ऐप है, ठीक है। इसमें यूजर्स ने एक बार डिफिकल्टी रिपोर्ट की दैट द ट्रांसफर मनी ऑप्शन, ठीक है। बेस्ड ऑन फीडबैक डिजाइनर्स एडेड अ क्लियरली विजिबल ट्रांसफर बटन। अब यूजर्स के फीडबैक पर ही उन डिजाइनर्स ने ट्रांसफर मनी का जो ऑप्शन था वो होम स्क्रीन पर विजिबल बना दिया। दिस सिंपल चेंज मेड द फीचर फास्टर एंड इजियर टू एक्सेस। As a result, usability improved and customer satisfaction increased. Ninth question है, give two considerations for designing accessible system for users with disabilities. अब हम लोगों ने इसके बारे में भी एक आंसर करना है कि system should be compatible with assistive technologies such as screen readers और speech recognition tools. अब जो कि disabled people होते हैं, या तो वो पढ़ नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो उनके लिए भी इसमें additional tools insert किए जाते हैं। Second, designer should provide multiple input methods such as voice. अब सिर्फ टाइपिंग वाला नहीं होता, वॉइस भी है, कीबोर्ड भी है, टच भी है, क्योंकि अगर कोई डिसेबल है, उसकी कोई भी डिसेबिलिटी है, तो वो सेकंड फीचर को यूज कर सके। These considerations ensure inclusivity for different types of disabilities. Following WCAG stands further improve accessibility and compliance. 10th has suggests three features that should be included in a new educational software application to enhance accessibility for users with disabilities. अब ये एक SLO बेस्ड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इसका आप अपनी मर्जी से भी आंसर कर सकते हैं या हम यहाँ डिस्कस भी कर सकते हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट टू स्पीच सपोर्ट। विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए हमें इसमें ये फीचर ऐड करवाना चाहिए। सेकेंड है एडजस्टेबल फॉन्ट साइज एंड कलर कंट्रास्ट, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और थर्ड है कीबोर्ड नेविगेशन एंड वॉइस कंट्रोल, स्टूडेंट जो मोटर इम्पेयरमेंट्स के साथ होते हैं उनके लिए। सच फीचर्स मेक द सॉफ्टवेयर इंक्लूसिव एंड इंश्योर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल यूजर्स।